My name is Shivam Trivedi. I am an assistant professor in mechanical engineering department at Axis Colleges Kanpur. Today I am here to give you a brief introduction about the topic Introduction to Refrigerants. As we all know that mechanical engineering branch is classified into further sub-classifications like production engineering, design engineering and thermal engineering. So under thermal engineering is a vast field which covers almost all the topics which are related to mass and energy transfer. So refrigeration is also a part of thermal engineering, and in this we would learn that from a refrigeration term. Normally if I would ask a person from a refrigeration term, we will understand that it talks about cooling, but what is the basic principle beside it? What is the concept? What are the various cycles? We know that if a certain process is taking place, then definitely some or the other principle or the law is imposed behind that so that it is possible. So in this case of refrigeration and air conditioning, we have the various cycles which help in carrying out the refrigeration or the cooling process, and these cycles are, I would be discussing further about these cycles in my upcoming slides. So first of all, from the term refrigeration, if I would ask you that what is refrigeration, then a normal person would or a layman language, in a layman language who is not an engineer, would kindly tell me that sir, refrigeration is nothing but refrigeration refers to the cooling or the removal of heat from a substance or from a cabin or from a room so that to cool it and produce the refrigeration effect or a cooling effect. But refrigeration is a process in which the transfer of heat from the low temperature to a high temperature level takes place using a refrigerant. Here we come across a new term known as refrigerant. I would be explaining you. You all would be aware that heat transfer, the transfer of heat takes place from a concentration of higher temperature to a concentration of lower temperature. But in case of refrigeration, the same process of heat transfer takes place from a source of higher temperature to a sink temperature of lower temperature, that is, but in a presence of a refrigerant. So I was talking about refrigerant. Refrigerant, in normal Hindi we call it as a prashitak, or a substance which is responsible for making the cooling effect inside a refrigerator. From the the heat release from the inner surface of a refrigerator takes place from the condenser. If we would like to study that what is a condenser, what is a evaporator, all these devices are placed inside a refrigerator, and there is a cycle which governs the entire cooling process or which is responsible for carrying out the entire cooling process inside a refrigerator, and that cycle is called as refrigeration cycle. What is a refrigeration cycle? How it works? On what cycle it is based? What is the principle? So now I am going to tell you about the basic principle or the basic cycle on which the entire refrigeration process takes place, or on which the entire refrigeration process is based. In our thermodynamics, we all have heard about a term, a Carnot cycle. We know that the students are taught in their undergraduate course that a Carnot cycle is basically a hypothetical cycle. In the first line only we say that it is a hypothetical cycle or an imaginary cycle. Why do we say it's a hypothetical cycle? Here the question arises. Because the processes that are taking place into the entire Carnot cycle are not practically possible, but for the sake of convenience we study it by taking certain assumptions, and it's an ideal cycle. Practically this cycle is not possible. If we reverse, I am not going to explain you here, I am not going to explain you about the Carnot cycle, and we all have done in our previous classes. Here I am going to tell you about a reverse Carnot cycle, which is the governing cycle of the refrigeration. So if I come down to reverse Carnot cycle,
Reverse Carnot cycle. Reverse Carnot cycle is such a cycle which is also a hypothetical cycle. It is also an ideal cycle. Practically it is not possible. But you would ask me a question, sir, then why are we studying it? What is the reason behind it? If it is an imaginary cycle or if it is an hypothetical cycle, then why do we need to study? This reverse Carnot cycle provides us the formula to derive the coefficient of performance, or in Hindi we say Nishpadak Gudank of a refrigerator. I think that most of you are aware with the term efficiency. If I say that you have to calculate the efficiency of a certain engine, then you can easily calculate it. But a term COP, that is coefficient of performance, is a new term for you all. Now if I begin, then reverse Carnot cycle, after Carnot cycle, reverse Carnot cycle is considered to be one of the most efficient cycle in the entire thermodynamics. There are various processes that are involved in reverse Carnot cycle. Now I would be naming some of the processes that are involved in reverse Carnot cycle. For example, we all know that if we want to study any cycle or if we want to study any system, then we would like to know what are the processes, what are the governing processes, or what are the processes that are taking place in that are responsible to carry out or to give the exact result. So in thermodynamics, we do all the assumptions, all the diagrams, all the terms are plotted on pressure velocity diagram, PV diagram, TF diagram, HF diagram. So the first process which the reverse Carnot cycle involves is the reversible adiabatic process. The first process which the reverse Carnot cycle involves is reversible adiabatic process. It is also known as isentropic process, in which the entropy remains constant. Secondly, so if we would like to plot a reversible adiabatic process, currently I am not saying that it is whether it would be a compression process or it would be an expansion process. Currently I am not talking about that. I am just saying about all the processes that are responsible to take place in reverse Carnot cycle. The first process is reversible adiabatic process. Second one is reversible isothermal process. In this, the temperature remains constant. The third process is reversible adiabatic process or isentropic process, in which the entropy is constant. The fourth process is reversible isothermal process. In this, the temperature remains constant. So if we go to the conclusion or if we draw a conclusion from the entire cycle, there are two reversible adiabatic processes and two reversible isothermal processes that are taking place in reversible Carnot or the reverse Carnot cycle. In the first process, which is isentropic process or reversible adiabatic process, the first process is reversible adiabatic compression. First of all, I would like to tell you all that if we are going to study any cycle, then we need to know that what is the working fluid that is responsible to carry out that cycle. For you know that for SI engine or for petrol engine we use
air ऐसा air standard working fluid for air standard cycle. For CI engines we also use air ऐसा air standard cycle. So in this cycle, in refrigeration cycle or the reverse Carnot cycle on which the refrigeration cycle is based, we will be using refrigerant as our working fluid. Refrigerant as our working fluid, and it will only be responsible to carry out the entire cooling within the cabin of the refrigerator. So if the working fluid is refrigerant, we are using refrigerant as the working fluid. So from process 1 to 2, if it is saying that it's a reversible adiabatic process. What do you mean by reversible adia? Entropy remains constant. Okay, so we would be drawing a reversible adiabatic, but it is a reversible adiabatic process in which the compression is being carried out. In this, compression is carried out. So if we want to represent this process on PV diagram, it would be from process 1 to 2, it would be like this. This process is reversible adiabatic process in which the entropy is constant. Process 2 to 3 is a heat addition process. I said it is a heat addition, but by mistake I told you it is a heat addition process. It is a heat rejection process. Process 2 to 3 is a heat rejection process at constant temperature. Okay, I think that you would be having many doubts at this point of time, but I would be clearing it. Now come down to process 3 to 4. Process 3 to 4 is a reversible adiabatic process or the isentropic process in which the entropy remains constant, but it is an expansion process. This process is an expansion process. In expansion process, there is a increment or the increase in the volume of the fluid. See, I am talking about refrigerant. Refrigerant is being taken as a working fluid in this entire cycle. Okay, so refrigerant can exist in both the stages. It can be either be in liquid state or it can be in gaseous state during the entire refrigeration cycle takes place. Process 3 to 4 is a reversible adiabatic expansion process. In this process, the entropy remains constant and there is a increase in the volume of the fluid. Now come down to process 4 to 1. Process 4 to 1 is isothermal process, reversible isothermal process with heat addition. So here heat was relieved out and here we need to supply heat. So I am writing QA, or you can say as QS, Q absorbed or Q supplied, or in process 2 to 3 we call it as QR, heat rejected. So during this entire process, this cycle is a power consuming cycle. In this cycle is known as power consuming cycle. By power consuming cycle we mean to say that, now if I would like to explain you all that आप जब भी फ्रिज का या घर पे रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हो तो आप उसको क्या सप्लाई करते हो? आप उसको पावर सप्लाई करते हो. पावर क्या होता है? सिंपली टेंडेंसी टू डू वर्क इज सिंपली नोन एज पावर, कार्य करने की क्षमता. आप जब रेफ्रिजरेटर को पावर सप्लाई करते हो, आप रेफ्रिजरेटर को वर्क इनपुट दे रहे हो. अगर आप रेफ्रिजरेटर को बेटा वर्क इनपुट दे रहे हैं तो उस केस में ये हमारी साइकिल कहलाएगी पावर कंज्यूमिंग साइकिल. और पावर कंज्यूमिंग साइकिल हमारी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज साइन से रिप्रेजेंट की जाती है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस.
हमारा होता क्या है, हमारे कई डाउट अराइज हुए होंगे इस केस में। क्या डाउट होगा कि आपने बोला था कि प्रोसेस 2 to 3 जो है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। हमें सभी को पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, हीट सामान्य, हीट का फ्लो ही नहीं होता। लेकिन इस केस में हमने बोला दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द हीट इज रिजेक्टेड। तो क्या यह पॉसिबल है कि तापमान सामान्य कर दें और हीट का फ्लो करा लें? टेम्परेचर में राइज और गेन तभी होगा, राइज और फॉल तभी हो सकता है जब आप किसी तरह का हीट ट्रांसफर कैरी आउट करें। तो इसमें तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो किसी तरह का हीट ट्रांसफर कैरी आउट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे हो रहा है। यह एक लिमिटेशन है इसका, दैट हमने पहली बात में बोला था कि ये जो कार्नोट, रिवर्स कार्नोट साइकिल है, ये आपकी हाइपोथेटिकल साइकिल है। ये क्यों हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप साफ बोल रहे हो कि प्रोसेस 2 to 3 में हीट रिजेक्शन करा रहे हो। अगर हीट रिजेक्शन करा रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या ये पॉसिबल है? ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल। प्रोसेस 4 to 1 देखिए, प्रोसेस 4 to 1 में हमारा बोल रहे हैं हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहां पे हमारा इवेपोरेटर लगा है। आगे समझाता हूं आपको इवेपोरेटर का क्या मतलब है, कंप्रेशर, कंडेंसर, इन टर्म्स का क्या मतलब है। यहां पे हमारा इवेपोरेटर प्लेस्ड है और इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम हीट सप्लाई करेंगे किसी भी साइकिल को कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या ये संभव है? ये बिल्कुल नहीं संभव है, क्योंकि अगर आपने तापमान ही कांस्टेंट कर रखा है तो किस तरह से आप हीट का ट्रांसफर करा सकते हैं? ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से ये एक लिमिटेशन है कि हम कार्नोट साइकिल को, रिवर्स कार्नोट साइकिल को एक हाइपोथेटिकल और आइडियल साइकिल मानते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये साइकिल। उसके बाद बात करते हैं कि हमारी, देखिए अभी समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए कि हमारी रिवर्स कार्नोट साइकिल पे पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम आधारित है। अब ये काम कैसे करती है साइकिल, इसके पार्ट क्या होते हैं? देखिए, आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये फ्लो करेगा हमारा रेफ्रिजरेटर के जितना भी पूरा सिस्टम लगा हुआ है, कंडेंसर, कंप्रेशर, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, और रेफ्रिजरेंट कभी लिक्विड फेज में चेंज होगा, कभी गैसियस फेज में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? हीट एब्जॉर्ब कब करेगा, हीट रिलीज कब करेगा? देखिए, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए यह प्रोसेस है कि जब आपका साइकिल 1 से 2 कैरी आउट हो रही थी, तो वहां पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस था। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? आप एंट्रोपी को कांस्टेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज का कंप्रेशन कर रहे हैं, सॉरी, इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस का यह मतलब है कि अगर आप कंप्रेस कर रहे हो, आप किसी चीज को अगर कंप्रेस कर रहे हो, तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा रहे हो, क्योंकि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी बराबर mRT। आप अगर किसी गैस को टेम्परेचर और प्रेशर अगर कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करने की स्टेट में उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। प्रोसेस 1 से 2। प्रोसेस 2 से 3 है हमारा, क्या था? आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। एक रेफ्रिजरेटर में होता क्या है वास्तव में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक रेफ्रिजरेटर में हमारी 4 डिवाइसेस लगी होती हैं। जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें तो पहला है हमारा इवेपोरेटर, दूसरा कंप्रेशर, तीसरा कंडेंसर, चौथा हमारा है एक्सपेंशन वाल्व। होता क्या है इसमें पूरा प्रोसेस कैरी आउट कैसे करते हैं? आपका रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक जो फील्ड है हमारे पूरे साइकिल में टेक प्लेस कर रहा है, ये क्या करेगा? ये हमारा रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेशर में जाएगा, सबसे पहली स्टेज में ये कंप्रेशर में फ्लो करेगा। कंप्रेशर में क्या होगा आपका कि कंप्रेशर में आपका जो रेफ्रिजरेंट है, जो प्रशीतक है, उसको कंप्रेस किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा, और कंप्रेशर जब कंप्रेस करेगा उसको, तो हमारे प्रशीतक का, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाएगा। कंप्रेशर का काम ही है कि किसी भी फ्लूइड का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाए, उसको कंप्रेस करे। अगर किसी चीज को कंप्रेस किया जा रहा है, उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, तो आपको भी पता है कि उस चीज का हम क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम कम कर रहे हैं, वॉल्यूम में रिडक्शन ला रहे हैं। अगर वॉल्यूम आप घटा रहे हो तो प्रेशर और टेम्परेचर यहां से बढ़ रहा है। उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है? वो हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर में चेंज हो जाता है। वो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर से निकल के आया था,
तो वेपर स्टेट में था, जब कंप्रेशर में गया तो उसको और कंप्रेस किया गया, तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट गैसियस फेज में था, वेपर फॉर्म में था, वो फर्दर कंप्रेस हो गया, आपका वेपर्स में ही रहा लेकिन और कंप्रेस्ड स्टेज में पहुंचा। थर्ड स्टेज आपका होता है कंडेंसर। कंडेंसर में जब आपका रेफ्रिजरेंट जाता है तो क्या होता है, देखिए यही साइकिल मैंने आपको समझाई थी अभी कि रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप हमारा किस साइकिल पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है। अगर हम आपको इससे समझाना चाहें तो देखिए, ये वो टीएल है लोअर टेम्परेचर। आपका मेन उद्देश्य क्या होता है रेफ्रिजरेटर को यूज करने का, आपका मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको रेफ्रिजरेटर यूज करके कूलिंग इफेक्ट चाहिए और अपने फूड प्रिजर्वेटिव को आप प्रिजर्व कर सके, लंबे समय तक यूज कर सके, उसको सुरक्षित रख सकें। इसी प्रकार से जब ये आपका एक रेफ्रिजरेटर है, हमने बोला था आपसे कि ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, आप इसको कार्य दोगे तब ये आपको ऊष्मा देगी। क्या कर रहे हो आप, देखो इसमें आप भी इस साइकिल में इस रेफ्रिजरेटर को हीट वर्क सप्लाई कर रहे हो। जब वर्क सप्लाई कर रहे हो पावर के फॉर्म में, जब वर्क सप्लाई कर रहे हो तो रेफ्रिजरेटर हमारा चलेगा। रेफ्रिजरेटर जैसे ही ऑपरेट करेगा क्या करेगा, ये कंडेंसर से जितनी भी, कंडेंसर के माध्यम से रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी हीट डेवलप हुई है उसको रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करने के बाद वो फ्लो कराएगा एक्सपेंशन वॉल से। अगर आप किसी चीज से ऊष्मा निकाल रहे हो, जैसे आपको पता होगा कि जो भाप होती है उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है लिक्विड की तुलना में, लेकिन अगर एक हॉट लिक्विड की बात करता हूं तो हॉट लिक्विड का टेम्परेचर भाप की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, जब आपका रेफ्रिजरेंट प्रशीतक हमारा कंप्रेशर में जाएगा तो वो किस स्टेज में था, वेपर स्टेज में। वेपर स्टेज में था, कंप्रेशन ने क्या किया, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को और कंप्रेस किया। कंप्रेस किया मतलब बढ़ाया और वॉल्यूम को कम किया। प्रेशर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा हमारे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तो वो हमारा किसमें फ्लो करेगा, कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम है, कंडेंसर का कंडेंसेशन प्रोसेस से ही आप समझते हो किसी भी चीज को कंडेंस करना, उसके फेज में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके टेम्परेचर में डाउनफॉल करना, उसके टेम्परेचर तापमान गिराना। आप अगर कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रशीतक को जो वेपर स्टेज में था, इतना हॉट था हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से कि आपने उसको कंडेंस किया, मतलब ठंडा किया। ठंडा जैसे ही प्रशीतक को आपने किया, उसने अपने अंदर की ऊष्मा रिलीज करी। वो जब ऊष्मा रिलीज करेगा तो आपके फ्रिज के अंदर की एंटायर हीट आपके रेफ्रिजरेटर की बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट आउट होगी। रिजेक्ट आउट होने के साथ साथ क्या होगा, ये हमारा दोबारा एक्सपेंशन वॉल में जाएगा, जहां इसका प्रेशर और टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट हमारा फ्लो कराएगा एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल से दोबारा जाएगा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर का क्या काम है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सदैव इवेपोरेटर को वहीं लगाते हैं एक रेफ्रिजरेटर में जिस पॉइंट पे हमें कूलिंग चाहिए होती। इवेपोरेटर ही वो डिवाइस है जो फ्रिज में, आपके रेफ्रिजरेटर में कूलिंग करता है, कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवेपोरेटर काम कैसे करता है, देखिए आपका जो गैसियस रेफ्रिजरेंट था, ठीक है बेटा, गैसियस रेफ्रिजरेंट को हमारा कंडेंसर ने कंप्रेशन ने कंप्रेस किया, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर इसको हमने फ्लो कराया किसमें, कंडेंसर में। कंडेंसर में फ्लो कराने से उस वेपर जो के फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट था उसका हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम किया। तो जब प्रेशर टेम्परेचर कम किया तो वो रेफ्रिजरेंट जो हमारा गैसियस फॉर्म में था वो लिक्विड में चेंज हुआ। लिक्विड में चेंज होगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। जब हीट रिलीज करेगा तो आपको बदले में जो रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वॉल में फ्लो करेगा। एक्सपेंशन वॉल से जब इवेपोरेटर में आएगा, इवेपोरेटर में जैसे ही फ्लो करेगा, इवेपोरेटर बाहर से ऊष्मा लेगा और हमारे रेफ्रिजरेंट को जो लिक्विड स्टेट से आया है हमारा निकल के कंडेंसर से, उसको और हीट करेगा। हीट करने के साथ क्या होगा, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को, अगर कोई चीज हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो ये भी तो समझो कि वो अपनी भी तो ऊष्मा छोड़ रही है। अगर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को आप और हीट कर रहे हो तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपनी भी तो हीट छोड़ेगा। लिक्विड रेफ्रिजरेंट में हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि
वो खुद इतना ठंडा होता है, प्रशीतक जो होते हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, वो खुद इतने लोअर टेम्परेचर, उनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट खुद इतना लो टेम्परेचर पे होता है कि आप उसको जितना भी हीट करो रहता वो माइनस में ही है, कुछ डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे आपका रेफ्रिजरेंट में अमोनिया हो गया, और पुराने जमाने में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड यूज करते थे, ठीक है, तो वो रहेगा लोअर टेम्परेचर पे ही। लोअर टेम्परेचर पे आपने जैसे ही उसको हीट किया तो वो क्या करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपनी ऊष्मा रिलीज करेगा, और अपनी ऊष्मा किसको सप्लाई करेगा, रेफ्रिजरेटर को, इवेपोरेटर के माध्यम से। जैसे ही इवेपोरेटर के माध्यम से अपनी ऊष्मा रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा, फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारा कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा बदले में क्या हो रहा है, बदले में यह हो रहा है कि रेफ्रिजरेंट भाई हीट रिलीज कर रहा है। अगर कोई चीज, अगर कोई भी डिवाइस हीट रिलीज कर रहा है, या कोई भी प्रशीतक या लिक्विड हमारा हीट रिलीज कर रहा है, तो बदले में उसको भी तो हॉट आप कर रहे हो, आप उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अगर उसका टेम्परेचर साहब आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो हमारा कंडेंसर से निकल के आया था, आप उसको फिर से बदल दे रहे हो गैसियस फॉर्म में। और इसी तरह ये हमारी पूरा चक्र चलता रहता है और ये साइकिल कैरीड आउट होती है। इस साइकिल को हम कहते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल, और इसी पे हमारा रेफ्रिजरेटर का वर्किंग पूरी आधारित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का सिद्धांत किसने दिया था, यह हमारा दिया था क्लॉसियस ने। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने हमें दिया था हीट पंप और रेफ्रिजरेटर्स के बारे में जानकारी। क्या था, क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट it is impossible to construct a device that operating in a cycle has no effect other than the transfer of heat from a cooler to a hotter body। मतलब अगर हमारी हीट फ्लो कर रही है, किसी भी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल टेक प्लेस कर रही है, तो ऐसी डिवाइस बनाना नामुमकिन है जो कि हीट एक साइकिल में, एक चक्र में ऑपरेट करे, लेकिन उसकी जो हीट है वो लोअर हायर टेम्परेचर से लोअर में ही हो। ठीक है, प्रशीतक क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, मैं आपको समझा चुका हूं। एक अच्छे प्रशीतक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक जो आइडियल प्रशीतक होता है, जो हमारा अच्छा प्रशीतक एक रेफ्रिजरेंट है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए उसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वो हमारा, उसका जो प्रशीतक का फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो बहुत लो नहीं, बहुत हाई नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हमारा रेफ्रिजरेंट या प्रशीतक का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है तो उस केस में अगर आप लोअर टेम्परेचर अटेन करोगे और हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में वो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल के दौरान ट्यूब्स के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्रीज कर जाए, और अगर हमारा रेफ्रिजरेंट फ्रीज कर जाएगा तो हमारी पूरी साइकिल अफेक्टेड होगी और हमें जो डिजायर्ड कूलिंग चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए वी नीड दैट द रेफ्रिजरेंट एंड आइडियल रेफ्रिजरेंट शुड ऑलवेज हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट। सेकेंड, इट शुड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द मेटल्स, बिकॉज if the refrigerant, when the phase changes of a refrigerant in evaporator and in condenser, then there is a phase change. The refrigerant changes from liquid state to vapor state in one condition, and from in the other, in the case of condenser, it changes from vapor to liquid state. Okay, so an ideal refrigerant should never react with an metal, so that to form a metal, so that it should form a metal oxide, that would be very harmful, because if a refrigerant would react with one of the metal oxide or metal, then it would simply result in the formation of metal oxide, which is undesirable. Okay, then the cost of the refrigerant should be low, because so that it can be affordable easily by the persons to carry out the refrigeration at their desired place. Then the refrigerant should be non-toxic. It should not be poisonous that it would harm the
material that has been kept inside the refrigerator. It should have a pleasant odor and it should not be toxic. Here are the categories of some of the refrigerants that I have mentioned. Refrigerant are basically classified into two categories. One is primary refrigerant, the other one is secondary refrigerant. Primary refrigerant is that refrigerant which actually take place in the refrigeration cycle and it absorbs heat from the condenser, that is from the inner surface of the refrigerator, and provides cooling at the end of the cycle, that is in the process 4 to 1 where we were supplying heat to the evaporator. So at the end of the evaporator the cooling starts, and the primary refrigerant is such refrigerant which directly take part, but the secondary refrigerant is such a refrigerant that doesn't directly take part in the refrigeration cycle, but it takes the heat of the evaporator, then it supplies the heat of the evaporator to the primary refrigerant, and hence the efficiency of the refrigeration cycle increases. The most common refrigerant we use nowadays in ice plant and cold storage is ammonia, that is NH3. Here are some of the properties that are mentioned of ammonia, that it is highly toxic, flammable, good thermal properties. Ammonia is one of the best refrigerant because it provides a very good cooling and at a very large rate also. Nowadays, ammonia is never used as a domestic refrigerant. Ammonia is always used for industrial purposes, for example in cold storage or in ice cooling plants. Second one, I was talking about the carbon dioxide refrigerant. You all know that carbon dioxide gas is such a gas which is not a supporter of combustion. Okay, as we all know that oxygen is a supporter of combustion, but carbon dioxide is a colorless non-toxic gas which has a cooling texture. Carbon dioxide gas has a cold texture as compared to oxygen. So it was used as a refrigerant in old times, but its refrigeration effect was negligible. It was tends to I would say that its refrigeration effect was about minimum as compared to the refrigerants that are being provided nowadays in the domestic refrigeration. We all know that Freon 12 and its derivatives are being used as the refrigerants nowadays in our day-to-day household domestic refrigerators, but the CO2 gas was not considered to be as one of the good refrigerants. It was used in old days, but now it's not in use. Third is air. Air was also used or considered as a refrigerant. For example, you all have heard about air cooled engines. Now there are also oil cooled engines. In air cooled engines, fins are attracted on the piston, are attached on the piston heads, which are responsible for liberating out heat which is generated inside the piston cylinder arrangement due to the combustion process of the fuel. Okay, so you might have seen there are rectangular surfaces that are attached, or the triangular profiles fins are attached on the piston head of an automobile and are responsible for the release of heat that has been generated inside the piston cylinder arrangement due to the combustion of heat. So the cooling which takes place from the fins is a natural air cooled engine, and air is responsible to carry out cooling. But here also the refrigeration effect is not up to that extent that it would be providing a very good refrigeration effect or something. No, it doesn't provide a good refrigeration effect. It is used as it was used as a refrigerant in old days, but now it has also been not used since long. These were some of the properties of ideal refrigerant which I discussed with you. Then come down to Freon 11 and Freon 12 family.
Primary refrigerants are basically classified into four categories: halocarbon refrigerant, halocarbon refrigerant, azeotropic refrigerants, geotropic refrigerant, and hydrocarbon refrigerants. What are these refrigerants? These all come under the family of Freon 12. You might have heard R134A, R22, R11. So the R here signifies that it stands for refrigerant, and the number which is used, it signifies that it shows that what are the number of hydrogen, carbon and fluorine atoms present in the refrigerant, and the balance atom which are present in the nomenclature of a refrigerant are basically the chlorine or the bromide molecules that are added as a balance molecules in a refrigerant. Coefficient of performance. As we all know that in case of engines, in case of heat engines, we require efficiency. मतलब इंजन्स की हमें गुणवत्ता चाहिए होती है, लेकिन हमें कभी भी एक रेफ्रिजरेटर की गुणवत्ता नहीं निकाला जाता है। रेफ्रिजरेटर का हमेशा निष्पादक गुणांक निकलता है, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला है, यह हमारा जस्ट अपोजिट चलता है एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। जो गुणवत्ता निकालने का फॉर्मूला होता है, उसके जस्ट अपोजिट चलता है हमारा निष्पादक गुणांक का फॉर्मूला। निष्पादक गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसके बराबर होता है कि कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हुआ। सीओपी बराबर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क। कौन सा वर्क है ये? वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किसके बराबर है? अगर आपको समझाने के लिए हम बोले तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कूलिंग इफेक्ट है। ये हमें किस पॉइंट पे ऑब्टेन हो रहा था? रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। ये हमें अटेन हो रहा था प्रोसेस 4 to 1 पे जब हम चल रहे थे पीवी डायग्राम में। तो हमारा क्या हो रहा था? इवेपोरेटर जहां पे अटैच था, वहां पे हमारा इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट की हीट को अट्रैक्ट करके और एब्जॉर्ब करके रेफ्रिजरेटर के अंदर सप्लाई कर रहा है, उससे कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था। लेकिन साथ में अपनी जो हीट को रिलीज भी कर रहा था। रेफ्रिजरेंट जो था वो अपनी हीट को रिलीज कर रहा था। रेफ्रिजरेंट हमारा कोल्ड टेंपरेचर पे था, तो अपनी हीट को रिलीज करेगा तो रेफ्रिजरेटर के अंदर तो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। लेकिन इवेपोरेटर जो है आपका एक्सटर्नल हीट सोर्स से हीट करके क्या कर रहा था? उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में चेंज कर रहा था। मतलब अगर रेफ्रिजरेंट प्रशीतक हमारा हीट रिलीज कर रहा है, तो उसको कहीं से हीट सप्लाई भी की जा रही है। और उस हीट इवेपोरेटर में ये चीज होती है कि हीट इवेपोरेटर ट्यूब्स के अंदर आप उसको हीट सप्लाई करते जाओगे, और हीट जैसे सप्लाई करोगे वो प्रशीतक हमारा, वो रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड स्टेट से निकल के वेपर स्टेट में आ जाएगा, और हमारे फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटिंग या कूलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेटर हमेशा वहीं लगाया जाएगा, उसी पॉइंट पे लगाया जाएगा एक रेफ्रिजरेटर में जहां हमें कूलिंग इफेक्ट डिजायर्ड होगा या कूलिंग इफेक्ट चाहिए होगा। सीओपी की ये वैल्यू थी। वर्क इनपुट क्या है? वर्क है जो पावर आपने सप्लाई किया था। वर्क आपने किस तरह सप्लाई किया था? देखिए, वर्क निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? वर्क निकालने के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या? कितनी हीट रिलीज हुई? क्यू आर। हीट किस केस में रिलीज हो रही थी? हीट हमारा कौन रिलीज कर रहा था? हीट रिलीज कर रहा था कंडेंसर। कंडेंसर प्रोसेस 2 to 3 में लगा हुआ था। कंडेंसर क्या कर रहा था? कंडेंसर हमारा हीट रिलीज कर रहा था, वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज कर रहा था। और जब किसी चीज को वेपर से लिक्विड में बदल रहे हो, किसी चीज से आप स्टीम रिजेक्ट कर रहे हो, हीट रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज अपने आप कोल्ड टेम्परेचर पे आ जाएगी और हीट रिलीज करेंगे। तो हीट रिलीज करेंगे तो ये क्यू आर वो टेम्परेचर है एट अ हायर टेम्परेचर, TH लिख दिया। और हीट एब्जॉर्ब कहां हो रही थी? हीट एब्जॉर्ब हो रही थी इवेपोरेटर में, जहां हमारा कूलिंग इफेक्ट आ रहा था, तो QA। और ये हमेशा कोल्डर टेम्परेचर पे होगा। ये हमारा सीओपी इस तरह डिटरमाइन होती है एक रिवर्स कार्नोट साइकिल की, और एक रेफ्रिजरेटर की सीओपी इसी तरह कैलकुलेट की जाती है, जिसपे हमारा
रिवर्स कार्नोट साइकिल पे आधारित है। आगे देखते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, अब तक ये तो समझ में आ गया रेफ्रिजरेटर क्या डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी मशीन है जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में कितने प्रकार के होते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है वो कितने प्रकार की साइकिल होती है, ये समझने वाली बात है। रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी बेसिकली जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो दो टाइप की होती है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, रेफ्रिजरेटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल एक मैकेनिकल। ठीक है, नेचुरल की बात करें, नेचुरल में तो आपका एयर आ गया, रेफ्रिजरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, आपकी एयर है सिंपल एक गैस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस इन विच इट इज ऑल्सो हेल्पफुल एज अ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, ये आपके नेचुरल हो गए रेफ्रिजरेटर। लेकिन मैकेनिकल की बात करें, यांत्रिकी जो बनाए जाते हैं इंजीनियर्स के द्वारा, वो है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको हम कहते हैं वीसीआरएस। और वेपर एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं वीएआरएस। होता क्या है वीएआरएस और वीसीआरएस, आगे बताते हैं आपको। देखिए, वीएआरएस और वीसीआरएस में सबसे बड़ा अंतर है, जो पहली बात समझने वाली है, कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को यूज करेगा एज अ ड्राइविंग एनर्जी टू कैरी आउट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब कूलिंग करने के लिए हमारा वीसीआरएस साइकिल में मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जाएगा। अभी आप समझेंगे कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जाएगा। ये वही साइकिल है जो हमने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। क्या इसमें है कि जो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल में वर्किंग प्रिंसिपल था वही हमारा लगेगा वीसीआरएस में। बस एक इसमें बदलाव होता है कि हम एक्सपेंशन डिवाइस के पहले एक फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर क्या करता है, जितना भी हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में पाइप में फ्लो करने से मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है उसको रिमूव करता है। अभी आगे बात करते हैं इस पे। दूसरा सिस्टम होता है वेपर एब्जॉर्प्शन। अगर वेपर कंप्रेशन आपसे पूछा जाए तो सीधे लिखिएगा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन वो सिस्टम है जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को यूज करता है कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए, और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारा थर्मल एनर्जी को यूज करता है। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा थर्मल एनर्जी को यूज करता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारा वेपर कंप्रेशन जो बेसिक डिफरेंस है वो पहली चीज यही समझने वाली है कि दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। भाई कूलिंग तो दोनों ही कर रहे हैं, वेपर कंप्रेशन के माध्यम से हो या वेपर एब्जॉर्प्शन के, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट तो आप दोनों के ही माध्यम से प्रोड्यूस कर रहे हो। मेन इसमें बात क्या है, मेन बात यह है कि वेपर कंप्रेशन हमारा यूज कर रहा है आपकी मैकेनिकल एनर्जी और ये हमारा यूज कर रहा है थर्मल एनर्जी। कैसे यूज कर रहा है वेपर कंप्रेशन, पहले पढ़ेंगे हम लोग आज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, ये फिगर है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और ये फिगर हमारा इसका पीवी डायग्राम बता रहा है, प्रेशर वेलोसिटी पे कर्व पे कैसा डायग्राम आता है। देखिए बेटा, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन में सबसे पहला जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है वो जा रहा है हमारा, इसमें भी हमारा वर्किंग फ्लूइड जो है वो आपका रेफ्रिजरेंट है, प्रशीतक। प्रोसेस 1 से 2 में कंप्रेसर में आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब इसमें फ्लो करेगा तो वो किस फॉर्म में था, वो गैसियस फॉर्म में था। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर के अंदर जा रहा है वो गैसियस फॉर्म में था, वाष्प के फॉर्म में था। वो कहां से आया था वाष्प के फॉर्म में बनके, वो आया था इवेपोरेटर से निकल के। आगे बात करते हैं इस पे। देखिए, कंप्रेसर में जब हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट गया तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ने क्या किया, कंप्रेसर ने उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करेगा तो क्या करेगा, उसका वॉल्यूम घटाएगा और उसका प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ाएगा। अगर आप किसी चीज का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा रहे तो क्या कर रहे हो, आप उस चीज को अगर वेपर स्टेट में है तो सुपर हीटेड स्टेट में ले जा रहे हो और हीट कर रहे हो, तो वो वेपर का वेपर ही फॉर्म रहेगा। लेकिन यहां कंप्रेसर के एग्जिट से जो वेपर निकलेगा वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रहेगा। फिर वो निकल के किस में जाएगा, वो हमारा जाएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंस
आपको यहीं से समझिएगा, कंडेंस का मतलब है किसी वाष्प को, किसी भी गैसियस फेज को लिक्विड में चेंज करना, किसी चीज से हीट निकालना। अब देखिए, जब आपका प्रशीतक जो कि वेपर स्टेट से कंप्रेसर से निकल के गया था, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे था, यहां से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा। जब वो हमारा कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर उसकी ऊष्मा को खींचेगा और उससे हीट रिलीज करेगा। अगर हीट रिलीज करेगा तो क्यों रिजेक्शन होगा, यहां पे क्यों रिजेक्शन होगा। तो अगर आप किसी भी चीज से ऊष्मा को निकाल रहे हो, जैसे आपसे हमने बोला कि आपने पानी को बॉईल किया, पानी बॉईल करने से वो वेपर में चेंज हुआ, आपसे हमने कहा उस वेपर को कंडेंस करना शुरू करिए। आप जब कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, या नेचुरल जो हमारा वाटर बॉडीज होती हैं, इनमें हमारा वाटर फिल्ड रहता है, सनलाइट की वजह से, तेज धूप की वजह से वाटर इवेपोरेट कर जाता है। जब वाटर इवेपोरेट करता है तो आपको पता है कि बादल के फॉर्म में वही वाटर हमारा नीचे आता है, रेनफॉल के फॉर्म में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कंडेंसर हमारा क्या कर रहा है, कंडेंसर आपके जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था उसकी ऊष्मा को खींच रहा है, उसकी ऊष्मा को बाहर रिजेक्ट कर दे रहा है। किसके साथ रिजेक्ट कर रहा है, वो ऊष्मा को रिजेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये ऊष्मा फ्रिज के या रेफ्रिजरेटर के अंदर की ऊष्मा को निकाल रहा है, रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब करके। जब एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को तो क्या करेगा यहां कंडेंसर हमारा, कंडेंसर हमारा वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट था उसको पूर्ण रूप से लिक्विड में बदल देगा। लिक्विड में, यही तो हमारा रिवर्स कार्नोट साइकिल में हो रहा था। जब हमारा इसको इसमें बदलेगा लिक्विड फॉर्म में, तो वो हमारा प्रशीतक अब लिक्विड में चेंज हुआ, देखिए लिखा हुआ है लिक्विड में। लेकिन अगर आप किसी स्टीम से लिक्विड बना रहे हो तो आप हीट लूज कर रहे हो ना, हीट को रिलीज कर रहे हो ना, तो हीट रिलीज यहां पे होती है, याद रखिएगा हमेशा, कंडेंसर में। अब क्या हुआ, लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा एक्सपेंशन वॉल्व में आया। एक्सपेंशन वॉल्व का फिगर कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा, एक नोजल के फॉर्म में। अगर ध्यान से देखिए तो नोजल का काम होता है किसी भी चीज के प्रेशर को बढ़ा देना। देखिए, जब हमारा यह एक्सपेंशन वॉल्व में फ्लो करेगा तो एंथैल्पी एट पॉइंट 3, लिक्विड की जो एंथैल्पी थी पॉइंट 3 पे, H3H4 के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपेंशन वॉल्व लगा है और एक्सपेंशन वॉल्व का वर्किंग प्रिंसिपल ही कुछ ऐसा कहता है। एक्सपेंशन वॉल्व से जब हमारा लिक्विड निकल के आएगा तो भी वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, जब रेफ्रिजरेंट निकल के आएगा तो भी हमारा वो किस में रहेगा, आपका रहेगा लिक्विड स्टेट में। लेकिन कुछ ध्यान से समझिएगा, कुछ वेपर्स लिक्विड रेफ्रिजरेंट के इवेपोरेट होना शुरू होंगे, क्योंकि इस केस में आपका प्रेशर और टेम्परेचर में वृद्धि हुई, टेम्परेचर और प्रेशर राइज किया हल्का सा। जब टेम्परेचर ऑफ प्रेशर राइज करेगा तभी ये लिखा हुआ है टू फेज, मतलब आपका जो प्रशीतक था रेफ्रिजरेंट वो दो स्टेट में हो जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में होंगे और कुछ मॉलिक्यूल हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। जब लिक्विड फॉर्म का वो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर में आएगा, अब देखिए ये पूरा एक साइकिल हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर कैरी आउट हो रही है। जब हमारा ये इवेपोरेटर में फ्लो करके आएगा, इवेपोरेटर कहां लगा होगा, इवेपोरेटर उस जगह प्लांट किया जाएगा आपके रेफ्रिजरेटर में जिस पॉइंट पे आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए होगा, जहां आपको प्रशीतन प्रभाव चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट को जैसे ही इवेपोरेटर में फ्लो कराओगे, इवेपोरेटर आपके रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को खींचेगा। अब आपका रेफ्रिजरेंट जब वेपर से लिक्विड में बदल गया तो उसका टेम्परेचर गिरा, रेफ्रिजरेंट वैसे ठंडा होता है, उसका तापमान कम होता है, रेफ्रिजरेंट अपनी हीट लूज करेगा। रेफ्रिजरेंट ठंडा पे टेम्परेचर पे वो हीट लूज करेगा, तो हीट लूज करेगा तो इसको हम लिख दें, किसको सप्लाई करेगा, अपनी ऊष्मा अगर रिलीज करेगा प्रशीतक तो किसको देगा, वो देगा इवेपोरेटर को। इवेपोरेटर किससे अटैच्ड है, आपके रेफ्रिजरेटर में, जहां पे आपको कूलिंग चाहिए होती है। तो जो आपके रेफ्रिजरेंट जो प्रशीतक की हीट है वो आपकी यूज हो जाएगी ऐसा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जनरेट करने में या कूलिंग इफेक्ट जनरेट में। इसको हम QS भी लिखते हैं, मतलब Q सप्लाइड, और इसी को हम Q एब्जॉर्ब भी लिखते हैं, QA के बराबर। अब हमारा यहां पे क्या होगा, रेफ्रिजरेंट ने तो अपनी हीट रिलीज कर दी, रेफ्रिजरेंट जो था उसने तो हम अपना टेम्परेचर रिलीज किया, लेकिन जब टेम्परेचर रिलीज करेगा, कोई भी बॉडी अगर टेम्परेचर रिलीज कर रही है तो उसको क्या हो रहा है भाई, वो ठंडी अवस्था में थी, उसने अपनी हीट रिलीज करी लिक्विड स्टेट से, तो उसने क्या किया, इवेपोरेटर को भी हमारा क्या हीट कूलिंग प्रोवाइड करी, वो कूलिंग आपने फ्रिज के अंदर दी रेफ्रिजरेटर को, लेकिन वो रेफ्रिजरेंट तो हीट हो गया स्वयं।
उसने अपनी हीट रिलीज करी, रेफ्रिजरेंट हीट हुआ, इवेपोरेटर ने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब किया और रेफ्रिजरेंट हमारा यहीं पे इवेपोरेटर में ही आके बदल गया, किससे? लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में। और ये पूरा चक्र पूरी साइकिल में कैरी आउट होता रहता है। इसी तरह इस पॉइंट पे इवेपोरेटर पे हमारा कूलिंग होती है और कंडेंसर पे हमारा हीट रिलीज होती है। क्लियर है? देखिए इसी का यही पीवी डायग्राम यहां पे समझाया गया है। सेम प्रोसेसेस हैं, 1 से 2 हमारा कंप्रेशर, 2 से 3 कंडेंसर, 3 to 4 एक्सपेंशन और 5 to 1 या 4 to 5 आप बोलो तो एक्सपेंशन और 5 to 1 इवेपोरेटर। क्लियर है? ये हमारा प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम था। सेम प्रोसेसेस जो मैंने समझाए हैं वही लिखे हुए हैं कि एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में, वीसीआरएस साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस in a refrigeration cycle in a VCRS vapor compression refrigeration cycle. Process 1 से 2 compressor process, process 2 to 3 that it is a normally condensation process, or we say that it is a condensation process which is carried out inside a condenser, and 3 to 4 the हमारा liquid refrigerant passes to from the condenser, it is changed into liquid state from gaseous. Okay, then that liquid state refrigerant in process 3 to 4 is allowed to pass through expansion device, and from 4 to 1 again from expansion device it turns to evaporator, where the phase change of liquid refrigerant take place, and again it converts to steam or vapor phase. These are the properties, these are the processes that I have explained you in reverse Carnot cycle. The same processes are mentioned here also. You can go through it. Now here I have mentioned that what are the functions of a compressor. The function of compressor is normally to increase the pressure and temperature of a liquid refrigerant in case of refrigeration cycle, and if you are increasing the pressure and temperature, if you are compressing a liquid, then definitely you are decreasing the volume of that refrigerant. Condenser, the function of condenser is that it cools or condenses the vapor into the liquid by releasing heat. The heat which is relieved is from the refrigerant, and in response in the evaporator it provides a refrigeration or a cooling effect. Same are the functions of expansion valve evaporator. I have told you in detail about all this. And thank you. It's all from my side. Thank you.